रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने बताया कि धान की खरीदी का अमल बेहतर तरीके से जारी है और किसानों को इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी के इंतजाम कर रहे हैं। धान के जखीरे के लिए हुकूमत की तरफ से थैलों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। 8 करोड़ 85 लाख थैले पहले ही किसानों को फराहम किए जा चुके हैं और 25 लाख टन धान और अनाज के जखीरे के लिए 6 करोड़ 35 लाख थैले फराहम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर सहित टी हरीश राव ने मजाफाती इलाके नारसंगी में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए पूरी रियासत के अहम शहरों में 350 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं, जबकि 57 किस्म के टेस्ट मुफ्त करवाने की सहूलत फराहम की गई है। वज़ीर साहब ने बताया कि बस्ती दवाखानों की निशानदेही और उनके मकाम का पता चलाने के लिए एक ऐप शुरू किया गया है और उसमें टेस्ट की रिपोर्ट भी फराहम की जा रही है। నమస్కారం. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు బస్తీ ప్రజలకు సేవలు చేయాలి, జంట నగరాల్లో ఉండే పేద ప్రజలకు వైద్యం అందుబాటులోకి రావాలని ఒక విప్లవాత్మకమైన చర్యలకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీకారం చుట్టారు. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లో దవాఖాన అంటే ఏ ఉస్మానియా ఆసుపత్రో గాంధీ ఆసుపత్రో లేదా అక్కడో ఇక్కడో ఉన్న పిహెచ్సిలు మాత్రమే ఉండేది. కానీ బస్తీ ప్రజల సుస్థి పొడగొట్టాలి, బస్తీ ప్రజలకు వైద్యం అందుబాటులో రావాలని 350 బస్తీ దవాఖానాలను హైదరాబాద్లో ప్రారంభించారు. రాను రాను ఏమైపోయిందంటే ఏ డాక్టర్ గారి దగ్గర పోయినా పరీక్షలు చేయాలి అంటే ఆ పరీక్షల పేరు మీద వేల రూపాయల డబ్బులు పేదలైపోతా ఉన్నాయి. రక్త పరీక్షలని, మూత్ర పరీక్షలని, ఎక్స్రే అని, స్కానింగ్ అని, ఇతర రకరకాల పరీక్షల మీద ప్రజలు అనేక వ్యయ ప్రయాసాలకు లోనవుతా ఉన్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జంట నగరాల్లో 350 బస్తీ దవాఖానాలు తెచ్చాం. టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశాం. ఈరోజు హైదరాబాద్లో 20 రేడియాలజీ ల్యాబులు మనం ప్రారంభం చేసుకొని అందుబాటులోకి తెస్తా ఉన్నాం. ఈ రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ అంటే ఈరోజు మనం నార్సింగ్లో ఇక్కడ ప్రారంభించుకున్నది ఏంది, ఈ రేడియాలజీ ల్యాబ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ 4 రకాల సౌకర్యాలు మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎక్స్రే కానీ, అల్ట్రాసౌండ్ కానీ, మమోగ్రఫీ సేవలు కానీ, 2D ఎకో సేవలు, ఈ 4 రకాల పరీక్షలు ప్రజలకు ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు బస్తీ దవాఖానాల్లో ఎక్కడ పోయినా కూడా మీరు మీ రక్తాన్ని అక్కడ వాళ్ళ శాంపుల్ తీసుకొని 57 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసి 24 గంటల్లో మీ సెల్ ఫోన్కు పంపిస్తున్నారు. డాక్టర్ గారి ఫోన్కు పంపిస్తున్నారు, పేషెంట్ గారి ఫోన్కు కూడా పంపిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ 57 పరీక్షలు కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా లేటెస్ట్ కూడా వచ్చినాయి కనుక 134 పరీక్షలు ఉచితంగా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పుడు 57 రకాల పరీక్షలు ఫ్రీగా చేస్తున్నాం. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే ఇంకా లేటెస్ట్ పరీక్షలు కూడా రాస్తా ఉన్నారు డాక్టర్లు, ఇంకా బాగా క్లోజ్గా మానిటర్ చేయడానికి. సో రాబోయే రోజుల్లో 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా ఈ టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా మొత్తం హైదరాబాద్ జంట నగరాల్లో ఉండే 350 బస్తీ దవాఖానాల్లో చేయడం జరుగుతుంది. साउथ जोन और ईस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अफजलगंज के इलाके में रेजनी की वारदात अंजाम देने वाली एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 28,20,000 रुपए की नकद रकम, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। मुलजिमीन के नाम विकीराज पुरोहित, मनोज पनवार, विष्णु गोपाल व्यास, टीकमचंद, मनीष चौधरी बताए गए हैं, जो कि राजस्थान के मुतवत्तिन है। उनका एक साथी खेमराज पुरोहित मफरूर है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद के मुताबिक बेगम बाजार के ताजिर जोगी सिंह ने अपने मुलाजिम मीठालाल को 25 लाख रुपए की रकम घर पहुंचाने के लिए रवाना किया। इसी तरह सदनामालूम अफराद ने रास्ते में उसको रोककर रकम वाला बैग लेकर फरार हो गए। खेमराज ने, जो ऑटो ट्राली चलाता है, जोगी सिंह को अपने मुलाजिम को 50 लाख रुपए देते हुए देख लिया था और उसने टोली को उसकी इत्तला दे दी थी। चुनाचे उन्होंने एक मंसूबे के जरिए यह रकम लूट ली थी। मुलजिमीन के खिलाफ शाहनाजगंज पुलिस स्टेशन में भी मुकदमा दर्ज थे। మూడో కేసులో మీకు గుర్తుంటుంది, మార్చ్ నెలలో బేగం బజార్ అఫ్జల్గంజ్ ప్రాంతంలో ఒక దారి దోపిడీ జరిగింది. 50 లక్షలు దోపిడీ చేసి పారిపోయారు నేరస్తులు.
క్లూజ్ వచ్చాయి కానీ అందరు కూడా పరారీలో ఉండడంతో కష్టమైంది. దాదాపు 2 నెలల పాటు సౌత్ జోన్ అండ్ ఈస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ సభ్యులు, లోకల్ పోలీస్ కొంతమంది దీన్ని చేజ్ చేసి ఈ కేసుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలకుండా పట్టుదలతో ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో వివరాలు ఏంటంటే, జోగ్ సింగ్ అనే ఇక్కడ ఒక వ్యాపారస్తుడు హోల్సేల్ స్టీల్ బిజినెస్ చేస్తాడు. అతనికి కీమ్ రాజ్ పురోహిత్ అని ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు. అతను కూడా, వీళ్ళందరూ రాజస్థాన్కి చెందిన వాళ్ళు. రాజస్థాన్లో జాలోర్ మరియు చుట్టుపక్కల ఉన్న పల్లి డిస్ట్రిక్ట్ చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మైగ్రేట్ అయిపోయి ఇక్కడే ఉంటున్నారు, ఇక్కడే బిజినెస్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ కీమ్రాజ్ పురోహిత్కి డబ్బు అవసరమై వేరే కారణాల వల్ల కూడా కొద్దిగా ఇద్దరి మధ్య ఈ మధ్య సంబంధాలు కూడా సరిగా లేవు, బిజినెస్ రైవలరీ అనేది ఏర్పడింది. సో ఇతను విక్కీ రాజ్ పురోహిత్, మనోజ్ పన్వర్ అనే ఇద్దరు ఉన్నారు. వారు నాగోర్ డిస్ట్రిక్ట్ చెందిన వాళ్ళు, రాజస్థాన్లో. వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు, షాయినాథ్గంజ్లో. వారితో మాట్లాడి ఈ విధంగా ఉంది, అతను క్యాష్ బిజినెస్ బాగా చేస్తున్నాడు, డైలీ క్యాష్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది, అతని షాప్ నుండి వేరే షాప్స్కి తరలించడం అదంతా కూడా డిస్కస్ చేసుకొని ఒక దోపిడీ చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. దాని తర్వాత విష్ణు గోపాల్, టీకమ్ చంద్ అనే వ్యక్తుల్ని వారు ఎంగేజ్ చేసుకున్నారు. ఎంగేజ్ చేసుకొని ఆ రోజు అఫ్జల్గంజ్లో వాళ్ళు మిట్టా సింగ్ అనే జోగ్ సింగ్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఈ 50 లక్షలు తీసుకొని బిజినెస్ పర్పస్ కోసం వెళ్తూ ఉంటే వీళ్ళు అడ్డగించి అతనిపైన దాడి చేసి ఆ బ్యాగ్ లాగేసుకొని వాళ్ళు పారిపోయినారు. అప్పటి నుండి కూడా ఈ కేసు మేము దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కేసు దర్యాప్తు దాంట్లో రాజస్థాన్కి ఎన్నోసార్లు వెళ్ళి రావడం జరిగింది. ఈ 50 లక్షల్లో ఇంకా 29 లక్షల వరకు రికవరీ అయింది ఇప్పుడు. కానీ ఇంకా 21 లక్ష రూపాయలు ఈ కీమ్ राज बैंक ऑफ बड़ौदा वनस्थलीपुरम का एक कैशियर परवीन 22 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक परवीन हस्ब मामूल मंगल को ड्यूटी पर आया, लेकिन 4 बजे पेट में दर्द की शिकायत करते हुए बैंक से चला गया। बैंक बंद करने के वक्त तक भी उसके वापस न आने पर मैनेजर ने उसको फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। मैनेजर जब बैंक के काउंटर पर गया तो वहाँ 22,53,000 रुपए की रकम गायब थी। पुलिस वनस्थलीपुरम ने बैंक मैनेजर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात में मसरूफ है। बैंक और आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने शादी के बहाने एक लड़की को धोखा देने के मामले में जिले कृष्णा के एम अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि फेसबुक पर जुबली हिल्स की खातून के साथ दोस्ती करने के बाद उसने इस लड़की से शादी का वादा किया और फिर मुख्तलिफ बहानों से 2 साल के दौरान 45 लाख रुपए हासिल कर लिए थे। वो बाद मरतबा खुद को लड़की भी जाहिर करते हुए फेसबुक पर लड़कों से दोस्ती करता था और उन्हें धोखा देता था। इंस्पेक्टर जी वेंकट राम रेड्डी की हिफाजत में पुलिस ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। जो मैं बताया था वो है एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड का। इसमें अक्यूज्ड का नाम है अशोक, वो न्यूज़वीड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में का रहने वाला है। उसको बुरी आदतें हो गई थी। बीटेक फेल होने के बाद फेसबुक में देखकर इसको और आगे कुछ काम नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो फेसबुक में देखकर उसको आइडिया आया कि मैं क्यों ना एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सबको चीटिंग करूं। तो एक औरत के रूप में इसने एक फेसबुक का फेक आईडी क्रिएट किया। इसका नाम है इंदुशा तुम्मला और एक औरत के रूप में इसने बात करना शुरू किया दूसरों से। और जो मेल्स थे उसमें, इससे थोड़े लोग अट्रैक्ट होने लगे और उसमें एक अट्रैक्ट होने वाला है प्रवीण कुमार जुबली हिल्स का। तो दोनों में प्यार जैसा हो गया। ये उसको वो प्रवीण को नहीं मालूम कि ये आदमी है, औरत नहीं।
और ये जो भी बात करता था वॉइस चेंजिंग ऐप के माध्यम से इसका औरत के रूप में इसका आवाज़ आता था। तो पहली बार उसने पूरा ये बताया कि मुझे कॉलेज फीस भरना है, तो 3 लाख लिया। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड में उसने कहा कि मेरे माँ को कोविड हुआ है, तो उससे 10 लाख ट्रीटमेंट के लिए उसने खींचा है इससे। फिर नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड में इसको ये बताया कि मुझको कोविड आया है, 15 लाख फिर लिया। तो ऐसे करते करते उसको पूरी तरीके से उसको बिलीव करा के 45 लाख्स का उसका चीटिंग हुआ है। उसको जब पता लगा कि इतना पैसा गया है, कुछ उसको डाउट आया और आकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो इसका केस इन्वेस्टिगेशन फिर से हमारा साइबर क्राइम जॉइंट सीपी भोपाल, एडिशनल डीसीपी स्नेहा, एसीपी प्रसाद, एसआई मदन और इंस्पेक्टर। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने पेजी पेमेंट ऐप से सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम के अकाउंट को हैक कर लेते हुए 52,90,000 रुपए निकाल लेने वाले विजयवाड़ा के शातिर श्रीराम दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 17 लाख रुपए बरामद किए। ये वाकया 15 और 16 मार्च की दरमियानी शब पेश आया था। ये इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में फेल हो गया था। श्रीवाणी इंजीनियरिंग कॉलेज मैलावरम से किया था ये। तो 28 साल हैं इसका एज। इंजीनियरिंग करने के बाद इसको नौकरी कुछ नहीं मिली, तो ये वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, जो पेमेंट गेटवेज के जो बग्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर में वीकनेसेस होते हैं, उसको मालूम करने के लिए इसको वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के कहते हैं। और ये वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करते करते काफ़ी पेमेंट गेटवेज के बारे में सीख गया था। एक केस में इंस्टा मोजो पेमेंट गेटवे के बग्स को मालूम करने के लिए इसको $100 का भी इनाम दिया गया था वो कंपनी से, पर इसको कहीं नौकरी नहीं मिली। बीएससी कंप्यूटर्स भी किया है डिस्टेंस एजुकेशन से, एथिकल हैकिंग में कोर्स किया है। फिर उसके बाद 3 कंपनी विजयवाड़ा में शुरू किया ऐप्स लगा के, एक गेट कैब सर्विसेज का, एक फूड डिलीवरी सर्विसेज का एक, और वेजिटेबल डिलीवरीज का एक ऐप। तो इसका दिमाग में सब कभी भी ऑनलाइन कुछ करेंगे ऐसे ही चल रहा है। और इसका दोस्त है चिंटू उसका, और वो इसके साथ रहता है और ये सब करने में मदद करता है। तो ये पेमेंट गेटवेज के बारे में इसको जानकारी ज़्यादा हो गई और उसके दिमाग में आया 2018 में, 4 साल पहले, कि क्यों ना पेमेंट गेटवेज को हैक कर दे। मतलब पेमेंट गेटवेज में ये ट्रांजैक्शंस जो है लाखों में होते हैं और रिकन्सिलिएशन नहीं होता है रोज़, एक दिन में रिकन्सिलिएशन करने के भी महीने लग जाते हैं। पर बैंक्स में हर रोज़ ये रिकन्सिलिएशन होता है। तो इसने डिसाइड किया कि पेमेंट गेटवेज को हैक करना और इजी है और उसमें सेफ्टी भी है। तो इसने 1 नवंबर 2021 में बेस्ट पे गेटवे जो गुड़गांव में बेस्ड है उसको हैक किया और उसके द्वारा 20 लाख अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया। उसके बाद महाग्राम पेमेंट गेटवे उसको हैक किया, वो दिल्ली का कंपनी है, उसमें 60 लाख इसने डाइवर्ट किया अपने अकाउंट में। फिर हैदराबाद का कंपनी है पेजी, ये दोनों केस वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और उसमें कोई इसका तहकीकात जो है आगे नहीं बढ़ा है। पर जो हैदराबाद में केस रजिस्टर हुआ था मार्च 2022 में, 2 महीने हो गए हैं। ये एक्सिलिका नाम का कंपनी है, उसका पेमेंट गेटवे का नाम है पेजी। इसको इसने हैक किया और 53 लाख रुपए इसने डाइवर्ट किए हैं। तो ये सब करने का सिस्टम जो है वो पेमेंट गेटवे का में एंटर हो जाता है एक मर्चेंट के रूप में, अपना यूज़र आईडी, फेक यूज़र आईडी क्रिएट करके उसमें एंटर होने के बाद लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद वहाँ पर
क्या क्या ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद एडमिन का नाम, एडमिन का जो यूज़र आईडी है वो मालूम करके वो ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा, ये केस में एडमिन 1 था तो एडमिन 1 करने से उसको डायरेक्ट मेन अकाउंट, पूल अकाउंट जो है उसमें उसको एक्सेस मिल गया। वो एक्सेस मिलने के बाद इसने 53 लाख रुपीस का डाइवर्शन किया है 3 अकाउंट खोलकर, येस बैंक और ICICI इक्विटास, ये 3 अकाउंट इसने ओपन करके 53 लाख उसमें इसने ट्रांसफ़र किया है। और ये तीनों अकाउंट से फिर वापस बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा एक कोइवा नाम का एक क्रिप्टो करेंसी है, वो खरीद के अपना वॉलेट उसमें ओपन करके ये खरीदा है। फिर उसको आगे चल के और रेमिटानो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफ़र करके फिर उसके बाद अपने अकाउंट में उसको कैश, वो बिटकॉइंस को बेच के अपने अकाउंट में उसको फाइनली ट्रांसफ़र किया है। तो इसके ऐसा 53 लाख का इसने फ़ायदा इसको हुआ है। तो इसको हमारे पास कंप्लेंट आने पर हमारा साइबर क्राइम टीम बहुत इस पर जानकारी उनको मिली, बहुत ही मेहनत किए हैं 2 महीने पूरा, बहुत इन्वेस्टिगेशन जो है एक एथिकल हैकर की सहायता से, की मदद से उसको ट्रेस किया गया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन इसमें हुआ है और सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश में आने वाले तूफान आसानी के नतीजे में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस हैदराबाद में इक्का दुक्का मकामात पर बारिश की पेशकशी की गई है। आइंदा 48 घंटों में रियासत तेलंगाना में भी तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जिन अजला में बारिश की पेशकशी की है उनमें हैदराबाद, मंचिर्याल, जयशंकर भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और महबूबाबाद शामिल हैं। तूफान आसानी आइंदा 24 घंटों में कमज़ोर पड़ सकता है, ताहम दर्जा हरारत 32 और 42 डिग्री के दरमियान रहेगा। हैदराबाद में दर्जा हरारत चारशंबे को 38.4 डिग्री और आदिलाबाद में सबसे ज़्यादा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी रियासत मिसूरी में हुए ट्रैफिक के हादसे में तेलंगाना का एक नौजवान क्रांति किरण रेड्डी हलाक हो गया। बताया जाता है कि अन्नावरम मौजे जिले नलगुंडे का क्रांति किरण आला तालीम के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में अमेरिका गया था। वो मिसूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। 7 मई को वो अपने दोस्तों के साथ कार में सफ़र कर रहा था कि एक ट्रक से उसकी गाड़ी मुतसादिम हो गई। क्रांति किरण की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि उसके दीगर 4 साथी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। क्रांति किरण के वालिद श्रीनिवास रेड्डी अपने बेटे की हलाकत की इत्तला पाकर सख्ते में आ गए और पूरा गांव रंज और गम में डूब गया है। उन्होंने अपने बेटे की नाश नलगुंडा लाने के लिए जरूरी इकदाम करने की रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव से अपील की है। तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन गच्चीबौली स्टेडियम में 44वें कौमी आर्म रेसलिंग मुकाबलों की मेज़बानी कर रही है, जो कि 31 मई तक 5 जून मुनक़िद होंगे। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अली ने मीडिया को बताया कि मुल्क के 28 रियासतों के 1000 रेसलर्स इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इन मुकाबलों में कामयाब होने वालों को एशियाई और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए रवाना किया जाएगा। मुस्तफ़ा अली ने बताया कि तेलंगाना आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को 1982, 1985 और 2006 के बाद इस साल चौथी मरतबा कौमी मुकाबलों की मेज़बानी का मौका मिल रहा है। तूफान आसानी के चलते चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के ज़िला कलेक्टरों और आलादारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हर ज़िले में कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुतासरा अजला के लिए रवाना कर दिया गया है। तूफान आसानी की वजह से अजला विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, गुंटूर और कृष्णा में भारी बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2897 केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 54 नए अमवात की तौसीक हुई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुसलसल दूसरे दिन भी मंगल को
केसेस की तादाद 3000 से कम रही है। कोरोना वायरस की वबा के आगाज से अब तक मुल्क भर में जुमला 4,25,66,935 अफराद मुतासिर हुए। कल एक दिन में 4,72,190 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए।